Hello, class 4th. You all are welcome back again in your EVS class. Hope आप सभी अच्छे होंगे. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 रूट्स एंड शूट्स. आज हम रूट्स एंड शूट्स के बारे में पढ़ेंगे. ये रूट एंड शूट्स होती क्या है? सो दे आर द पार्ट ऑफ आवर plants. Activities given to you, perform the activity. You have to draw and color a tree, and you have to write 5 things that we get from trees. Plants क्या है? प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स है और ये क्या करते हैं बच्चों? ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं. किसके थ्रू बच्चों? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. There are some algae which are too small to be seen. कुछ ऐसे algae हैं बच्चों जो बहुत छोटे हैं, जो हम देख नहीं सकते, बट कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बहुत ज्यादा बड़े हैं. बच्चों पेड़ आपने देखा होगा, कुछ बहुत छोटे पेड़ होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत विशाल होते हैं. A plant is mainly divided into two parts. कोई भी पेड़ बच्चों दो हिस्सों में डिवाइडेड है. एक है रूट सिस्टम, एक है शूट सिस्टम. Here you can see root system is this that is under the ground, and shoot system that is up the ground. In root system we can see roots, and in shoot system we can see bud, fruit, stem, flower, leaf. Now let us discuss about roots. Roots क्या है? The root of a plant may be long and thick or bushy and fibrous. It grows under the ground and is non-green part of the plant. ये non-green part है plant का. ये help करता है बच्चों to fix itself in the soil, and it helps the plant की help करता है to absorb water and minerals from the soil, and it store extra food material from the plant. बच्चों there are 2,70,000 kinds of plants around the world. इतने बच्चों species हैं हमारे plants के. Then we have taproot. टैपरूट क्या है? टैपरूट है थिक होती है बच्चों, सिंगल रूट दैट ग्रोज डाउन द स्ट्रेट, जो सीधे रूट से अटैच रहती है. स्मॉल हेयर लाइक रूट्स ग्रो ऑन द साइड्स ऑफ टैपरूट. Carrot, pea and beans, they have tap roots. Here you can see in the picture. Fibrous root, a fibrous root consists करती है बच्चों small bushy roots which branch out of the base of the stem, and they are grass, wheat and rice plants have fibrous root. कुछ बच्चों स्पेशल रूट्स होती हैं जैसे कि बनियन ट्री की रूट्स जो है which grow downwards from the branches to the soil, and banyan tree is also our national tree. Such roots are called aerial roots. Plants of pumpkin family produce huge water storing roots. Plants like strawberry and cherry ये produce करते हैं birds along their roots that grew near the surface of the ground and help the plant to produce more of itself. Such roots are called propagative roots. Next we have importance of root. रूट की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? रूट जो है वो सॉइल को टाइटली पकड़ी रहती है और प्रिवेंट करती है पेड़ को नीचे गिरने से. रूट्स हैव टाइनी हेयर स्ट्रक्चर जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं. दे अब्सॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Thus they help the plant to grow. Next we have heavy rain and a strong wind wash or blow away the topsoil, and this is called soil erosion. Roots क्या करती है? Bind करती है soil को ताकि ऊपर की जो मिट्टी है वो उड़े ना. Then we have leaves. Next part of the plant is very important. Leaves को बच्चों kitchen of the plant भी कहते हैं क्योंकि जो plant है वो अपना खाना पत्तियों पे ही बनाता है. The flat and the broad part of the leaf उसे हम leaf bud कहते हैं. Here you can see diagram of leaf is given to you, and its different part is also given to you. Leaf blade, midrib and veins. Then we have tiny pores on the leaf जिसको हम stomata कहते हैं. Leaf क्या करती है? They take in and give out air through these pores, and they help the plant to breathe. ये plant की breathe करने में मदद करती हैं. Take a leaf and look it carefully. बच्चों एक पत्ती लीजिए और उसे ध्यान से देखिए. आपको उनमें कुछ veins, कुछ नसें दिखाई देंगी. In the middle of the leaf is the main vein जिसे हम midrib कहते हैं, जो कि बच्चों water लेके आती है leaf के लिए and carries food from the leaf to the other parts of the plant. Leaf contain करते बच्चों substance जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, और इसी के वजह से जो हमारी लीफ होती है वो हरे रंग की होती है. A plant make its food in leaf by the process of photosynthesis, and leaves use air, sunlight and chlorophyll to make food, and this process is known as photosynthesis. इसी process को बच्चों photosynthesis हम कहते हैं.
plant use this food to live and grow. Here you can see life cycle of a plant. Now let us discuss about the life cycle of a plant. सबसे पहले बच्चों बीज सीड होती है जो अंकुरित होती है, जर्मिनेट होती है. सबसे पहले सीड बच्चों जर्मिनेट होती है, उसके बाद उसमें से बेबी प्लांट निकलता है, अंकुरित होती है, फिर सीडिंग होती है, फिर प्लांट्स होता है, उसमें से फ्लावर निकलता है बच्चों, फिर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें से फ्रूट्स होता है, ठीक है, और प्लांट्स विद सीड्स. अब उन्हीं फ्रूट्स में बच्चों कुछ सीड्स होती है, बीज होती है, वो फिर से बच्चों सीड जो है जर्मिनेट करती है, स्प्राउट होती है, सीडलिंग होती है, तो यह प्रोसेस जो है वो चलता रहता है. नीम ट्री प्रोड्यूस करती है बच्चों मोर ऑक्सीजन देन एनी अदर ट्रीज. अब बच्चों फ्लावर्स भी जो है वो पार्ट है हमारे पेड़ का. फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. अ फ्लावर हैज फोर मेन पार्ट्स: petals, sepals, stamen and carpel. Flower first appear as buds and these buds change into flowers. Flowers then change into fruits which contain seeds. Seeds क्या करती है? They protect the food inside. They protect inside fruits and a seed contain a baby plant. और बच्चों which when a seed gets the right amount of water air, अब वो क्या करती है? वो स्टार्ट हो जाती है उगना. कुछ कॉमन ट्रीज है बच्चों. सम ट्रीज लाइक नीम, पीपल, बनियन, कीकर एंड टामरिंड, दे आर फाउंड इन आवर नेबरहुड एंड ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए. यूजफुल ऑफ कॉमन ट्रीज: लीव्स, बार्क एंड सैप ऑफ नीम ट्री. ये यूज होते हैं बच्चों साबुन बनाने के लिए, मेडिसिन दवाई बनाने के लिए और टूथपेस्ट बनाने के लिए. द लीव्स ऑफ पीपल ट्री आर यूज्ड इन लीफ मोटिव्स. और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जैसे बर्ड्स है, स्क्वारल एक्सेट्रा, दे मेक देयर होम्स इन अ बनियन ट्री. द वुड ऑफ कीकर इज यूज्ड टू मेक व्हील ऑफ बुलक कार्ट्स एंड tamarind is a sour fruit. It is used in food. The leaves of tamarind, they are also used in curry. Then we have some domestic plants. People grow some plants in and around their homes. These are called domestic plants. And plants जैसे कि बच्चों basil है, mint है, coriander and curry है plants. They are grown in kitchen garden and they are useful in several ways. They also check air pollution and produce oxygen. ठीक है बच्चों, सो ये प्लांट आपके घर में होंगे ही, बेसिल के, मिंट के और कोरिएंडर के. Then we have the roots of plant जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, बीट रूट है, टर्निप है. ये स्टोर करती है what? They store food from the plant. Such root are called storage root and we eat these roots as vegetables and they are also serve as useful source of food during famines. ठीक है बच्चों. Then we have shoot. Shoot क्या होती है? Shoot of a plant consists of stem, branches, leaf, fruits and flowers. हमने पढ़ा shoot जो है बच्चों upside of the plant होती है, ये green color की होती है. The shoot of a plant ये carry करती है water and mineral जो absorb होते हैं बच्चों root में और send करती है to the other parts of the plant. It transport food and made by the leaves to all parts of the plant. We need plants and trees. बच्चों हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें plants और trees की आवश्यकता होती है. We depend on plants and trees for the most of our needs. Trees क्या करती है बच्चों? They provide us fresh air, food, shelter, fuel, medicine and many other things. और हमें इनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए. Who looks after trees? ट्रीज की देखभाल कौन करता है बच्चों? तो इन सिटीज, टाउन्स, म्यूनिसिपल बॉडीज बनी है बच्चों जो प्लांट करती है सैपलिंग्स को और उनका ख्याल रखती है. दे ऑल्सो मेंटेन गार्डन्स एंड पार्क. इन विलेज पंचायत जो है वो इन प्लांट्स का ख्याल रखती है. When you travel in city by road, you can see trees on both sides and these trees have been planted to give shade and check soil erosion. ठीक है बच्चों, जब आप रोड पे जाते होगे तो अगल बगल पेड़ देखते होगे. ये बच्चों अगर सिटीज और टाउन में आप रहते हो तो म्यूनिसिपल बॉडीज देखती है इन प्लांट्स की देखभाल करती है और अगर आप गांव में रहते हो तो इनकी देखभाल बच्चों पंचायत के लोग करते हैं. ये हेल्प करती है ताकि बच्चों सॉइल इरोजन को रोक सके और दे आर मेंटेन बाय गवर्नमेंट. अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सीड. सपोर्ट: द स्टेम सपोर्ट्स द लीफ एंड फ्लावर्स. ट्रांसपोर्ट: द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ. फोटोसिंथेसिस ये एक प्रोसेस है बच्चों. द लीव्स यूज सनलाइट टू मेक फूड फ्रॉम द प्रोसेस. एंड रिप्रोडक्शन क्या है? फ्लावर से बच्चों सीड निकलती है, फ्रूट से सीड निकलती है. दैट आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स. अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ शूट्स. सबसे पहले एरेक्ट शूट्स क्या होती है बच्चों? एरेक्ट शूट्स वो होती हैं जो सीधे एरेक्ट खड़ी होती हैं ग्राउंड से एंड दे आर कॉमन ट्रीज एंड श्रब्स. ट्रेलिंग शूट्स क्या होती है बच्चों? ऐसी शूट्स होती हैं, दे आर कॉमन इन वाइन्स एंड ग्राउंड कोवर्स. क्लाइंबिंग शूट्स ऐसी होती हैं, दे यूजेस अदर ऑब्जेक्ट फॉर सपोर्ट्स एंड दे आर कॉमन इन वाइन्स एंड क्रीपर्स. बंच शूट्स वो होती हैं, बंच शूट्स ग्रोन इन क्लस्टर्स, ये क्लस्टर्स में उगाए जाते हैं एंड दे आर कॉमन इन ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स एंड विद द डेंस ग्रोन हैबिट.
Shoots are essential for the survival of plants and they provide support, transport water and nutrients and allow plants to photosynthesize and reproduce. That was all about your chapter. In this chapter, basically we have studies about plant and about root and shoot and we have briefly discussed about them. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.